Hello students, in the last class we have seen the Lewis representation for some of the simple molecules. Okay, today we will start with the representation for the polyatomic cation and the anion. So here is a few example, that is NH4 plus CO3 carbonate anion and SO4 2 minus. So how to represent the Lewis dot structure? Here some few method is there. Using this also you can represent the Lewis dot structure for the given cation or the anion. Okay. So first of all I am writing the T represents the total number of electrons after combining. Okay. For example, जैसे hydrogen and hydrogen, for hydrogen we know that the nearest noble gas is helium. For hydrogen it is 2, the total number of. For rest all elements it will be 8. तो यहाँ में नाइट्रोजन फर्स्ट इज द नाइट्रोजन, सो नाइट्रोजन द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी 8. देन कम्स द हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का क्या होगा, नियरेस्ट 2 है तो डुप्लेट होगा, बाकी सबके लिए ऑक्टेट होगा. ठीक, हियर डुप्लेट मींस 4 नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज देयर, दैट मींस 4 into 2, ओके 8. सो द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 16. Here in this case because all are attaining the octet configuration, so total elements काउंट कर दीजिए. What is the number of elements? एक कार्बन हुआ और यहाँ में 3, that means total 4 number of atoms are there. 4 atom means 4 into all are having the octet configuration means 32. Okay, and in this case here also all are attaining the octet configuration. So यहाँ में total number of elements कितना है, atoms कितना है, 1 sulfur and 4 oxygen atom is there. That means total 5 atoms are there. That means 5 into 8, so 40. Okay, like this you have to find out the total number of electrons. Now comes the valence electron, that represented by V. V equals to valence electron means the electron present in the outermost shell. For nitrogen it is atomic number is 7, so it is 2 5. That means 5 is the valence electron. Hydrogen के लिए कितना होगा, it is 1. So how many hydrogen? 4 hydrogen. That means 5 for nitrogen, 4 for hydrogen, and remember in case of cation plus is there means you are going to subtract it. In case of anion you are going to add it. Okay, so that means here I am going to subtract it by 1. So the here valence electron is, in this case the valence electron is, it is 8. Okay, and in case of carbonate anion it is, yes, for carbon it is 4, 6 is the atomic number 4, and for oxygen 2 6, 6 is the valence electron. So how many oxygen is there? 3 number of oxygen is there, और यहाँ में एक कार्बन है, तो that means 4 plus 6 number of oxygen, 6 3 is a, yes, 18, and since it is an anion I am going to add it plus 2. So here valence electron is 24 in this case, and in this case in the sulfate anion here the total number of electron, because oxygen and sulfur they belongs to the same group, oxygen, sulfur, selenium, tellurium, polonium belongs to the 16 group. So all are having the same valence electron, so just count the number of atom. What is the number of atom here? 5. Okay, 4 oxygen and 1 sulfur, so total 5. The valence electron is same, so 5 into 6 and this 2 electron we have to add it. That means in this case it is 32. Okay, now we are going to take the shared electrons, and shared electron is taken by the formula T minus V. ठीक है, that means total electron minus the valence electron. यहाँ में total electron 16 है and the valence electron is 8, so here you will be getting the answer 8. And in this case, the second case 32 minus 24, here also you will get the same answer 8, and in the third also 40 minus 32, here also you get the same answer 8. And the next, that is the unshared pair of electron denoted by U. Okay, unshared electrons. Okay, unshared electron given by the formula V minus shared, that means valence electron minus shared electron. So here valence electron is 8, shared electron is 8, so you will be getting the answer, that means no unshared electron will be there. Here in this case 24 minus 8, the answer will be, yes, 24 minus 8, it is equals to 16. Okay, and in this case it is equals to 32 minus 8, it is equals to 24. And using this now we are going to write the Lewis dot structure. Lewis dot structure के लिए we need only the shared electrons and the unshared electrons. अभी यहाँ में total electron और valence electron हम देखेंगे नहीं, simply we will write the Lewis representation. For example ammonia का दूसरा, अभी I will explain you in other way also how to write the Lewis dot structure. अभी जैसे कि यहाँ में है, इस फॉर्मूला के अनुसार मैं बताती हूँ. जैसे कि यहाँ पे अमोनिया है, it is surrounded by 4 hydrogen.
ठीक है, 4 हाइड्रोजन है। अभी नाउ सी द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 8 है। ओके, 8 मींस अभी मिनिमम किसी दो कंबाइनिंग एलिमेंट्स के बीच में, कंबाइनिंग एटम्स के बीच में कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है? 2। उससे कम एक तो नहीं हो सकता, क्योंकि एक बॉन्ड जब बनता है देयर विल बी 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन रहता है। तो यहां में मिनिमम जो है 2 इलेक्ट्रॉन वी शुड राइट। और 8 है, दैट मींस इक्वली डिवाइड करेंगे तो सबके पास कितना आएगा? दिस इज द लेवी-स्ट्रॉस स्ट्रक्चर एंड प्लस इज द मींस आई एम गोइंग टू राइट इन दिस वे। ये हो गया लेवी-स्ट्रॉस स्ट्रक्चर यूजिंग दिस फॉर्मूला। सिंपली शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आप डाल देंगे। अगर अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचा है देन अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन मींस हाइड्रोजन के लिए 2 होना चाहिए, तो यहाँ पे तो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पॉसिबल ही नहीं है। इन अदर केस अगर अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है यू विल बी कंप्लीटिंग द ऑक्टेट यूजिंग दैट। ओके, सो द स्ट्रक्चर, द बॉन्डेड जो बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन आई विल एक्सप्लेन नाउ। कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन अमोनिया में कैसे बनता है, अमोनियम आयन में कैसे बनता है? अमोनियम आयन, हाउ मेनी हाइड्रोजन इज देयर? 4 हाइड्रोजन इज देयर एंड वन ऑफ द हाइड्रोजन इज पॉजिटिवली चार्ज। ओके, यहाँ पे जो है अमोनियम प्लस है, दैट इज वन ऑफ द हाइड्रोजन इज पॉजिटिव। हियर नाइट्रोजन का वी नो दैट द वैलेंस इलेक्ट्रॉन दैट इज 5, 1 2 3 4 5। यहाँ मैंने 1 इसलिए डाला है क्योंकि हाइड्रोजन को खाली एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो एक हाइड्रोजन, ईच हाइड्रोजन इज हैविंग द वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन। लेकिन यहाँ पे जो है ऑलरेडी इस हाइड्रोजन का क्या है? प्लस चार्ज, दैट मीन्स इट लूज 1 इलेक्ट्रॉन। ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन है, उसने लूज कर दिया, दैट मीन्स हियर नो इलेक्ट्रॉन इज देयर फॉर हाइड्रोजन। तो यहाँ में इस केस में दिस already have said those because nitrogen has completed the octet, तो nitrogen is going to contribute both this electron, दोनों इलेक्ट्रॉन जो है नाइट्रोजन द्वारा दिया गया है। दिस इज कॉल्ड द dative bond formation and here this is the covalent bond formation for the ammonium ion. In this way you are going to represent it, okay, for the ammonium ion. In the same way you can write for the carbonate ion. Let's see that by using that oxygen, how many oxygen is there? 3. तो कहीं में भी 3 यहाँ डालिए या यहाँ डालिए, 3 ऑक्सीजन मैंने लिख दिया। एंड वन मोर थिंग यू हैव टू रिमेंबर, यहाँ में नेगेटिव चार्ज भी है, दैट मीन्स 2 ऑफ द ऑक्सीजन कैरीज सिंगल नेगेटिव चार्ज, कोई भी एक ऑक्सीजन में माइनस चार्ज होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है? 8 है, दैट मीन्स हियर आई एम राइटिंग 1 2 3 4 5 6। अभी 2 इलेक्ट्रॉन और रह गया, तो कहाँ डालेंगे? फॉर एग्जाम्पल इसे मैं नेगेटिव ले रही हूँ, इफ आई एम टेकिंग दिस वन एज नेगेटिव, दैट मीन्स द 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आई शुड ऐड हियर। रीजन इज दैट ऑक्सीजन अगर नेगेटिवली चार्ज है, दैट मीन्स ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया उस ऑक्सीजन में, तो इट इज गोइंग टू मेक ओनली 1 सिंगल बॉन्ड विद दिस कार्बन, तो वहां पे 2 बॉन्ड पॉसिबल नहीं है। तो दैट इज व्हाई आई हैव रिटन द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ लिखना है जहां पे नेगेटिव चार्ज नहीं है। दैट मीन्स अभी यहाँ नेगेटिव चार्ज लिख दिया, दैट मीन्स क्या होगा? ऑक्सीजन का जो यहाँ पे जो है बॉन्ड फॉर्मेशन होगा ऐसे, ओके। और यहाँ में कैसे बॉन्ड होगा? यहाँ पे जो है आप कंप्लीट, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐसे लेवी-स्ट्रॉस स्ट्रक्चर में ऐसे ही रहेगा, बट अनशेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ में 16 है, दैट मीन्स ऑक्सीजन जो है ऑक्टेट कंप्लीट करना ऑक्सीजन का। हाइड्रोजन का में हाइड्रोजन ऑलरेडी हैज 1 इलेक्ट्रॉन, तो उनका तो ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका था, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, लेकिन each oxygen is having here this one has only 2 electron, this one has 2 electron, this one has 4 electron, so we have to complete the octet। तो यहाँ पे 2 हो गया, that means 3 4 5 6 7 8, here also 3 4 5 6 7 8, in this case already 4 is there, that means 5 6 7 8। अभी आप काउंट करेंगे तो 16 ही होगा आपको यहाँ में अनशेयर्ड, ऑटोमेटिकली बराबर ही होगा। ठीक है, अगर बॉन्ड फॉर्मेशन में बता रहे हैं तो फॉर एग्जांपल बॉन्ड फॉर्मेशन हम बता रहे हैं, दिस इज द लेवी-स्ट्रॉस स्ट्रक्चर, हियर आई एम शोइंग द कोवेलेंट बॉन्ड। ओके, अभी यहाँ पे क्या हो रहा है? फॉर एग्जांपल कार्बन का क्या होगा? वी नो दैट इट हैज 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अभी ऑक्सीजन का कितना होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 1 2 3 4 5 एंड 6। यहाँ पे भी 1 1 2 3 4 5 6। Okay, 1 2 3 4 5 6, and in this case 1 2 3 4 5 6। ठीक, अभी ये 2 नेगेटिव चार्जेस है, दैट मीन्स इसे मैं नेगेटिव चार्ज डाल दे रही हूँ, तो यहाँ पे जो है एक इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, यहाँ पे भी मैं ऐड कर रही हूँ एक नेगेटिव चार्ज, दैट मीन्स यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, दैट मीन्स यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन हो गया, यहाँ में भी 7 इलेक्ट्रॉन हो गया। इस ऑक्सीजन को ओनली 1 electron it needs, this oxygen, so it is going to make one single bond। और यहाँ पे क्या होगा? क्योंकि यहाँ पे कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है, ऑलरेडी इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है? 6, तो 8 के लिए it needs
2 मोर इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे 1 क्यों हुआ, नेगेटिव चार्ज जहाँ दे रहे हैं वहाँ में सिंगल बॉन्ड होगा, क्योंकि वहाँ पे 7 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपने ऐड कर दिए। दिस इज द वे टू राइट फॉर द कार्बोनेट आयन लेविस स्ट्रक्चर एंड द कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है, यहाँ पे रिमेंबर ये जो है डेटिव बॉन्ड नहीं है, क्योंकि इसमें दोनों ने कंट्रीब्यूट, इसने एक सिंगल एलिमेंट ने कंट्रीब्यूट, एटम ने कंट्रीब्यूट नहीं किया, दिस इज शेयर्ड। तो यहाँ में भी कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म हुआ है। नाउ विल सी फॉर द SO4 2-। ओके, सल्फेट आयन, अभी SO4 2-, S4 ऑक्सीजन is there. Okay, the shared electrons it is 8. That means 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया 8। अभी ये वाला जो है इजी है, 24 आपको कंप्लीट करना है, दैट मीन्स ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट करिए। 1 2 2 हो गया, 3 4 5 6 7 8 2 हो गया, 3 4 5 6 7 8 2 हो गया, 3 4 5 6 7 8 3 4 5 6 7 8। ये हो गया लेविस डॉट स्ट्रक्चर। याद रखिए एक में जो है आप माइनस डालेंगे और दूसरे ऑक्सीजन में माइनस, किसी दो में जो है नेगेटिव चार्ज डाल दीजिए। तो ये हो गया लेविस रिप्रेजेंटेशन फॉर SO4 2-। अभी बॉन्ड कैसे फॉर्म हुआ होगा, बॉन्ड फॉर्मेशन यहाँ पे कैसे हुआ होगा, तो यहाँ पे सल्फर हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4 5 6 हो गया 6, क्योंकि सेम ग्रुप को बिलोंग करता है। ऑक्सीजन आल्सो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 एंड हियर 1 2 3 4 5 6 हो गया। अभी किसी दो में मैं नेगेटिव चार्ज ले लूंगी, नेगेटिव, जब भी नेगेटिव लिया तो एक इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर दीजिए आप। ओके, तो यहाँ पे जहाँ नेगेटिव दिया दे विल फॉर्म अ सिंगल बॉन्ड, हो गया। तो सल्फर आप देखेंगे कि ऑलरेडी इट अटेन्स द ऑक्टेट, तो सल्फर जो है ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन में पहुंच गया है ऑलरेडी, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो वो ना ही इलेक्ट्रॉन दूसरे से, अभी ऑक्सीजन जो है, इस ऑक्सीजन को 2 मोर इलेक्ट्रॉन, इट नीड्स, दिस आल्सो नीड्स 2 मोर इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट दिस ऑक्टेट। 2 चाहिए, लेकिन इसे कुछ भी नहीं चाहिए। तो यहाँ पे जो है शेयरिंग जो है पॉसिबल नहीं है, इस टाइप का बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऑक्टेट ऑक्सीजन का तो कंप्लीट हो रहा है लेकिन सल्फर का जो है ज्यादा हो रहा है। तो इन दैट केस दिस सल्फर, यहाँ पे ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉन है वहां से यहाँ शिफ्ट कर दीजिए, और दिस इलेक्ट्रॉन जो 2 इलेक्ट्रॉन है दैट इज गोइंग टू मेक द कोऑर्डिनेट बॉन्ड, दैट मीन्स सल्फर इज गोइंग टू कंट्रीब्यूट बोथ द इलेक्ट्रॉन फॉर शेयरिंग। तो ये हो गया डेटिव बॉन्ड। इस केस में भी सेम होगा, दिस इलेक्ट्रॉन जो है ऑक्सीजन का यहाँ शिफ्ट कर दीजिए। अभी ये जो सल्फर का जो 2 इलेक्ट्रॉन है मैं इधर डालती हूँ, तो दिस इज द डेटिव बॉन्ड। ओके, तो बॉन्ड जो फॉर्मेशन है ऐसे आप बता सकते हैं, लेविस डॉट स्ट्रक्चर यूजिंग दिस फॉर्मूला। ओके, दिस इज अबाउट द लेविस रिप्रेजेंटेशन फॉर द पॉलीएटॉमिक कैटायन एंड anion. Okay, now we'll see the next, that is the formal charge. What is formal charge and how to calculate it? Okay, so the first is formal charge. For finding out the formal charge also you need the same thing, that is the Lewis structure. Okay, you should know how to write the Lewis structure. And what is formal charge? It is the difference between the number of valence electron in an isolated atom and the number of electron assigned to that atom in the Lewis structure. Okay, एक formula है, let's see that formula, that is formal charge. It can be given as valence electron minus half the shared electrons minus the unshared electrons. तो ये फॉर्मूला, दैट मीन्स इट इज द डिफरेंस बिटवीन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड हाफ ऑफ द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स एंड अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो इससे आप फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कैलकुलेट ओजोन का जो है फॉर्मल चार्ज आपको कैलकुलेट करने को कहा गया। ओजोन हाउ मेनी ऑक्सीजन है? 3 ऑक्सीजन है, तो तीनों ऑक्सीजन का आपको कैलकुलेट करना है। तो कैसे करेंगे? How to calculate the formal charge? First of all, you will write the Lewis dot structure. Lewis dot structure again 6 electrons 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे तो बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया, इसने कंप्लीट कर दिया 8, इसने भी कंप्लीट कर दिया 8। सेकेंड, इफ दिस वन इज सेकेंड फर्स्ट ऑक्सीजन, दिस वन इज सेकेंड ऑक्सीजन, इसको थर्ड ऑक्सीजन मानते हैं, ठीक है। तो इसने भी 8 कर दिया, दैट मीन्स इसे 2 चाहिए। हियर अगेन सेम थिंग, जहाँ पे ऑक्टेट ऑलरेडी कंप्लीट हो गया है और जिसे इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए दैट इज गोइंग टू शेयर बोथ ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन जिसे चाहिए, दैट मीन्स दिस नीड्स 2 इलेक्ट्रॉन
एंड ये जो है अपना दोनों इलेक्ट्रॉन, यहां से जो इसका अपना इलेक्ट्रॉन मैंने यहां लिख दिया, एंड दिस ऑक्सीजन इज गोइंग टू शेयर बोथ ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन. अभी दो इलेक्ट्रॉन यहां था, एक इलेक्ट्रॉन मैंने इधर लिखा, एक मैंने इधर लिखा, एंड डायरेक्टिंग टुवर्ड्स इट. दैट मींस दिस इज शोइंग दैट बोथ द इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय द सेकंड ऑक्सीजन टू द थर्ड ऑक्सीजन. ठीक है, तो यहां पे कंप्लीट हो गया ऑक्टेट, सभी ने ऑक्टेट कंप्लीट कर दिया. नाउ विल ट्राई टू राइट द फाइंड आउट द फॉर्मल चार्ज. तो फॉर्मल चार्ज फॉर फर्स्ट ऑक्सीजन, फॉर्मल चार्ज फॉर ऑक्सीजन 1. तो कैसे करेंगे? फर्स्ट फॉर्मूला इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन. तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन याद रखिए सभी ऑक्सीजन में क्या होगा, सेम ही होगा, 6 माइनस हाफ इंटू शेयर्ड इलेक्ट्रॉन. शेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन? फर्स्ट ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं तो इन कितने ऑक्सीजन शेयर, कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं? 4 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं. ओके, देन माइनस unshared electron. Unshared electron 1, 2, 3, 4. Unshared means the lone pair. Okay, here it is 4. So the answer will be minus 2, minus 4, minus 6 plus 6. This equals to 0. That is the formal charge on first oxygen is equals to 0. Okay, what about the second oxygen? Formal charge on oxygen 2 कितना होगा? Valence same, माइनस हाफ. शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन शेयर किया है? क्योंकि बीच में है, दोनों तरफ से शेयरिंग हो रहा है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 इंटू 6. एंड अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ओनली 2. सो द आंसर इज 6 minus 5, it is equals to plus 1. Okay, that means in case of second the charge is, the formal charge is plus 1. and थर्ड ऑक्सीजन का क्या होगा? ऑक्सीजन जो 3 है, कंफ्यूज नहीं हो ना. ओके, अगर यहाँ मैं 3 डालती हूँ तो ओजोन लग रहा है, तो करके मैंने ऊपर डाल दिया. 6 माइनस हाफ इंटू थर्ड मीन्स हाउ मेनी शेयर्ड पेयर? ओनली 2. एंड हाउ मेनी अनशेयर्ड पेयर? अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, पेयर नॉट इलेक्ट्रॉन्स, टोटल 6 माइनस 6. सो हियर 6 कैंसल्स ओवर 6, तो यहाँ पे क्या हुआ? आंसर आया -1. ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट का है फॉर्मल चार्ज 0, सेकेंड का है 1, थर्ड का है -1. इन दिस वे यू हैव टू फाइंड आउट द फॉर्मल चार्ज. ओके, नाउ नेक्स्ट और एक एग्जांपल देखते हैं फॉर्मल चार्ज का कैलकुलेशन. HClO4 माइनस, नॉट माइनस, इफ इट इज H मीन्स इट विल बी माइनस. अगर यहाँ में H नहीं रहता, माइनस रहेगा, H डाल दिया तो इट इज नॉट इन आयोनिक फॉर्म. ओके, यहाँ पे क्वेश्चन आ गया फाइंड आउट द फॉर्मल चार्ज ऑफ Cl, क्लोरीन. अभी फॉर्मल चार्ज कैसे निकालेंगे? सिंपली सेम. या और एक चीज याद रखिए, जब भी लेविस डॉट स्ट्रक्चर आपको कहा जाता है बनाने के लिए, तो आपको समझ में नहीं आता है कि कहाँ कहाँ किस एटम को. अभी यहाँ पे 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स रहते हैं, ऑक्सीजन भी है, हाइड्रोजन में. तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब आया, इन मोस्ट ऑफ द केसेस जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आता है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ऐसे कॉम्बिनेशन में रहता है, OH के फॉर्म में रहता है. याद रखिए, जैसे कि H2SO4 है, H2SO4 की बात करते हैं तो यहाँ में 2 हाइड्रोजन है, दैट मीन्स द 2 हाइड्रोजन विल बी बॉन्डेड टू 2 ऑक्सीजन. तो दैट मीन्स खाली जो सिंपल ऑक्सीजन रह जाता है यहाँ में 2 ऑक्सीजन रह जाता है. तो यहाँ में इस केस में कितना ऑक्सीजन रह जाएगा? एक तो हो गया हाइड्रोजन के साथ बॉन्डेड, तो 3 ऑक्सीजन रह जाता है. ओके, नाउ ऑक्सीजन जब हाइड्रोजन से बॉन्डेड है, दैट मीन्स ऑक्सीजन हमेशा डबल बॉन्ड बनाता है. तो यहाँ पे डबल बॉन्ड तो ऑलरेडी एक तरफ हाइड्रोजन से बॉन्डेड है, तो दूसरी तरफ एक सिंगल इलेक्ट्रॉन लिखेंगे यहाँ पे. ओके, फॉर हाइड्रोजन ऑक्सीजन 1, 2, 3, 4, 5, 6. ठीक. एंड क्लोरीन 7, 1, 2, 3, 4 हो गया 7. फॉर दिस ऑक्सीजन अगेन 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. एंड हियर 1, 2, 3, 4, 5, 6. एंड हियर 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो गया. नो, ये तो हो गया, बॉन्ड फॉर्म कर दिया, यहाँ पे इसने बॉन्ड बना दिया. तो आफ्टर मेकिंग द बॉन्ड विथ ऑक्सीजन, तो यहाँ पे क्लोरीन जो है ऑलरेडी 8 ऑक्टेट में पहुंच गए, बिकॉज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. दिस वन इज ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है, तो यहाँ पे जो है इस केस में ऑक्सीजन का हम हटा देंगे, यहाँ डालेंगे, क्योंकि आपको पता रहना है कि कहाँ इलेक्ट्रॉन हम डालें. तो यहाँ पे डालने से नहीं होगा, यहाँ पे डाल दिया. और जो इस डबल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इट इज गोइंग टू मेक कोऑर्डिनेट बॉन्ड. जो 2 इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना दिया. ये 2 इलेक्ट्रॉन है, इट इज गोइंग टू मेक विथ
कोऑर्डिनेट बॉन्ड विथ ऑक्सीजन और ये 2 इलेक्ट्रॉन है। क्यों? क्योंकि इसने ऑलरेडी जो है ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर दिया और ऑक्सीजन, सभी ऑक्सीजन को 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो उसने 2-2 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन से ले लिए। तो फॉर्मल चार्ज इसका कैलकुलेट करना है फॉर क्लोरीन। तो Cl का फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करने के लिए यस, फर्स्ट इज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 7 क्योंकि हैलोजन है तो 7 ही होगा, माइनस हाफ इंटू शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि क्लोरीन में कोई इलेक्ट्रॉन बचा ही नहीं, दैट मीन्स इट इज 0. सो इट इज, द आंसर इज 3. द फॉर्मल चार्ज ऑफ chlorine in HClO4 is 3. Okay, so in this way you have to find out the formal charge of the given atom in the molecule. Okay, now next we will see the limitation of the octet rule. What are the limitations of the octet rule? Okay, the first is the formation of the compound with electron deficient atoms. The octet rule, there are some limitation of octet rule. The first one, what octet rule has said, the group 1 element, group 2 element and group 13 elements, they do not form covalent bond. The reason is that for formation of covalent bond, the number of electron in the valence shell should be more than 4 or 4 or more than 4. Okay, it should not be less. So here the valence electron, we know that in the first group it is 1, it is 2 and here 3. So they will not form covalent bond, but not, it is not so. The formation, the electron deficient compound is there. Electron deficient compound is there, which shows that the octet rule is not according to the given concept. Okay, तो यहाँ पे electron deficient, for example हम बता सकते हैं BeCl2 या simple lithium chloride belongs to group 1, belongs to group 2 and this one belongs to boron trichloride belongs to ग्रुप 13. तो यहाँ पे इस तीनों ने इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, यहाँ पे किसी ने भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं किया है. ठीक है, रूल के अनुसार क्या है, ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए. फॉर एग्जांपल लिथियम के लिए क्या होगा, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस, वैलेंस जो है 2 1 है, तो क्लोरीन का 1 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है. इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन फॉर क्लोरीन, फॉर लिथियम इट इज 2. यहाँ पे देखेंगे तो बेरिलियम के केस में देखेंगे तो 7 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 एंड हियर फॉर बेरिलियम का क्या है 4 है, दैट मीन्स 2 2 2 इज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन. यहाँ में बेरिलियम का लिख दिया, यहाँ में क्या क्लोरीन का लिख दिया इन 1 2 3 4 5 6 7. सो हियर अगेन हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज देयर फॉर द सेंट्रल एटम, हियर इट इज 4. इस केस में 4 आ रहा है, इस केस में 2 आ रहा है. हियर विल फाइंड 6 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स इट इज नॉट अकॉर्डिंग टू द ऑक्टेट रूल. ओके, तो फर्स्ट इज द फॉर्मेशन ऑफ द कंपाउंड with electron deficient compound, so which was not defined by octet rule. Okay, the second is the formation of super octet molecule. Super octet molecule, super octet molecule means the molecules having more than 8 number of electron in the valence shell. Example, I can take this example of PCl5, SF6, IF7. एक का बता देती हूँ. PCl5 phosphorus 15th group, that means 2 8 5, 5 is the valence electron, तो valence electron मैंने लिख दिया 1 2 3 4 5 and how many chlorine atoms are there, 5 1 2 3 4, जो shape है अब बाद में देख लेंगे 5 and सबके साथ बॉन्ड बना रहा है सब क्लोरीन, क्योंकि क्लोरीन नीड्स 1 इलेक्ट्रॉन, 7 है उसके पास तो 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए. तो यहाँ में वैलेंस इलेक्ट्रॉन आप कितना देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, दैट मीन्स phosphorus is having 10 number of valence electron and here in this case you will find it is having the 12 number of valence electron and here 14, so which was not according to the octet rule. And also the third one, the third point, the third limitation of the octet rule, that is the formation of compound of xenon. Xenon जो है we know that it belongs to the noble gas, और ऑक्टेट क्या कर रहा है, ऑक्टेट रूल क्या कर रहा है, जो कॉम्बिनेशन हो रहा है एटम्स जो है दे आर गोइंग टू कंबाइन टू अटेन द नोबल गैस कन्फिगरेशन, दैट मीन्स टू अटेन द इनर्टनेस. तो यहाँ पे जो है ऑलरेडी जो है यहाँ पे जो है xenon ऑलरेडी हैज अटेन द ऑलरेडी हैविंग द ऑक्टेट कन्फिगरेशन, तो लेकिन इसने भी क्या हुआ है कंबाइन किया है
कंबाइन करके एटम्स फॉर्म किया. फॉर एग्जांपल HCF2, HCF4, HCOF2, HCOF4, such compounds are found. That is also not according to the octet rule. So these are the limitation, okay, of the octet rule. Okay. Now we will see the next, valence shell electron pair repulsion theory. Okay, and this valence shell electron pair repulsion theory, it is going to tell you the shape of the molecule. Okay, from this theory you can predict the shape of the molecules, especially the covalent molecule. Okay, and the simple one, not the complex one. Okay, so we will see the point by which you can find out the geometry of the molecule. So the first one, the first valence shell electron pair repulsion theory, that is given by VSEPR. That is valence shell electron pair repulsion theory. Okay, according to this theory, the first point is the geometry of the molecule or the ion depends on the number of electron pair in the valence shell of its central atom. Okay, that means जैसे कि बेरिलियम क्लोराइड की बात करते हैं, तो यहाँ पे बेरिलियम क्लोराइड में this is the central atom and the geometry of this depends on what? Depends on the वैलेंस इलेक्ट्रॉन. दिस इज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन अराउंड द सेंट्रल एटम बेरिलियम. ठीक है, तो इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर डिपेंड है ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल. ओके, एंड सेकेंड पॉइंट इज दैट रिमेंबर दीज टू इलेक्ट्रॉन्स दे आर ऑफ सेम चार्ज. तो इस लोग दोनों के बीच में क्या होगा? रिपल्सिव फोर्स होगा. सो टू अटेन मिनिमम रिपल्सिव स्टेट the electron pair tries to remain as far as possible. जितना दूर हो सके पॉसिबल होगा उतना. जैसे कि इसकी ज्योमेट्री कैसा होगा? अभी ऐसे भी हो सकता है, 2 क्लोरीन ऐसा हो सकता है, या 2 क्लोरीन ऐसे होगा. तो कौन सा पॉसिबल में कौन सा ज्योमेट्री में जो है इलेक्ट्रॉन्स आर एट द मैक्सिमम डिस्टेंस. जहां पे याद रखना जितना ज्यादा बॉन्ड एंगल होगा उतना ही ज्यादा दूरी में होगा. तो बॉन्ड एंगल यहाँ पे तो कम ही होगा, 180 से ज्यादा कम है. यहाँ पे यू विल फाइंड द एंगल इज 180. इसे जो एंगल जो है कम पॉसिबल नहीं है. दैट मीन्स द ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल डिपेंड्स ऑन व्हाट? द बॉन्ड पेयर्स अराउंड द सेंट्रल एटम एंड दिस बॉन्ड पेयर टेंड्स टू रिमेन एज फार एज पॉसिबल. दिस इज द टू थ्योरी. सेकेंड पॉइंट था कि रिपल्सिव इंटरैक्शन जो है इलेक्ट्रॉन पेयर्स टेंड्स टू रिमेन एज फार एज पॉसिबल. एंड थर्ड पॉइंट टू बी रिमेंबर दैट इफ द सेंट्रल एटम contains is surrounded by only bonded electron pairs, जैसे कि इस केस में है only bonded electron pairs, इसके यहाँ पे जो है lone pair of electron या unpaired electron नहीं है. तो in that case the repulsive interaction will be equivalent. For example boron trichloride का देखिए BCl, यहाँ पे जो है all the, because boron का जो है 3 है valence electron और all the 3 electrons are involved in bond formation. तो इस केस में जो है there will be the repulsive interaction जो है सबके बीच में क्या होगा? equivalent होगा. तो equivalent होने की वजह से the geometry remains the same. That means the geometry is regular. But if the central atom is surrounded by both the bonded atoms as well as the lone pair of electron, the repulsive interaction is not equivalent. Example यहीं में example मैं बता देती हूँ. जैसे कि SO2 का SO2 here in this case SO2 जो है एक्चुअली इस फॉर्म में रहता है. here one lone pair is there. जैसे बोरोन ट्राइक्लोराइड में 3 एलिमेंट्स आर देयर, दिस आर इन दिस शेप. यहाँ पे भी उसी शेप में है, लेकिन बिकॉज ऑफ द लोन पेयर द शेप जो है बेंड शेप में आ जाता है. तो यहाँ पे जो एंगल है 120 होना चाहिए, एंगल जो है चेंज होकर 119.5 डिग्री. रीजन क्या है? द रिपल्शन बिटवीन द लोन पेयर एंड द बॉन्ड पेयर. तो एंगल थोड़ा कम हो गया है. Okay, next point I will explain you in the next class. Okay, till that time you note down the assignment and try to complete it. तो होप करती हूँ कि आज का क्लास जो है आपको समझ में आया होगा.